हेलो एवरीवन, मैं हूं हरकेश, वॉलंटियर एट एसडीपीजीआईपीएस एलुमनी एसोसिएशन। और इसको आप कॉलेज ऑफ फार्मेसी के नाम से भी जानते हैं। हमारे साथ है आज अंकित, जो कि हमारे एसडीपीजीएस के एलुमनी है। हमारा बैच और इनका बैच सेम रहा है, जो कि 2018 का। अंकित अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इनका AIR 38 रहा था जीपैट 2022। वो साथ में एक कमाल की बात ये है गाइस, ये हमारे जीपैट के जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मेंटर करने का काम भी करते हैं। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इनक्रेडिबल वर्क दैट अंकित इज डूइंग। सो अंकित, जस्ट टेल आवर व्यूअर्स अबाउट द phase that now you are at this level, and from where you begin, your journey begin and start till now. Yes, Rikesh. Ankit, please. First of all, thank you, Harkesh, and all the alumni of SDPGAPS and your team members for giving me the opportunity to connect with you and introduce myself and telling you about some part of my life. And as you all know, I am Ankit. I am from a small village Dhani Kirarod, that is in the Haryana district. Haryana state and Mehndaragarh district. And currently, I am pursuing my master's in pharmaceutics from University Institute of Pharmaceutical Science, Punjab University, in pharmaceutics. And I had done my bachelor from PGIMS Rohtak uh, uh, in 2022, and I had scored 38 rank in GPAT and 206 rank in NIPER 2022. And I also had qualified the GPAT and NIPER of 2021. And my journey began when I was in third year, or we can say in the fifth semester. And at that time, I decided that what I have to do in the future. And at that time, as you all know, in the 2020, the year was COVID. COVID is on the peak, Yeah. and I moved to my house just because lockdown happened in the country. And after that, I have no work to do. Then I decide that I have to do something beneficial for me, something that can help me to build my future. Then I starting preparing for GPAT, or means to say ki I start watching video on the YouTube. Side by side, my one senior, that is Mr. Rajesh, and at that time he guide me about the GPAT. And after that, I start preparing by taking a coaching from GPAT Pharma Academy, and where I learned lot of thing about our pharmacy subject, as well as how we can differentiate, or we can say how we can manage the time in our personal life and professional life as well. And my journey was up and down are come in my life. Sometime I feel demotivated, and sometime I feel motivated, just because of my family members as well as my seniors as well. As I told you that I was in my house during the preparation time, because at that time there was COVID. So basically, at that time, my mother motivated me very much, and she said me ki you are a very intelligent boy. I know. And as well as my sister also guide me, and sometimes she said कि कुछ नहीं होना तेरे से, नहीं आएगी रैंक. एंड Yeah. फिर वो मोटिवेशन आता था कि हाँ, इसका थोड़ा चुप करवाना है इनको, है ना. तो फिर बस मम्मी से कभी भी पूछता था कि क्या रैंक आएगी या फिर कुछ होएगा, होगा नहीं होगा, तो मम्मी हमेशा एक ही बात कहती थी कि हाँ, यू हैव टू डू हार्ड वर्क एंड द रिजल्ट इज इन द हैंड ऑफ गॉड. एंड साइड बाय साइड फादर का भी काफी मोटिवेशन फाइनेंशियली तो होता है स्टूडेंट्स में, बॉयज में मेनली, कि फाइनेंशियल सपोर्ट तो होता ही है. तो बाकी मेरे जो कलीग्स, मेरे जो कजन्स हैं, कजन ब्रदर एंड सिस्टर, दे आर ऑल्सो very they are also very good in their studies. Few of them are doctors, and few of them are from mean to say government sector. And by my some seniors are
are also very helpful for me, and they motivate me throughout my whole journey of GPAT. And I started my preparation of GPAT from my fifth semester that I told you, and after that I had qualified the GPAT 2021 by scoring a good rank, and and my qualification of GPAT and in the third year is very beneficial me to prepare for the final GPAT that is in fourth year, because it's helpful me कि yes अभी तो सिर्फ qualify हुआ है, then I am able to get a good rank. Let me ask you something. Like you told me, like your family environment was like medical kind of thing. Like, so I just want to know, why did you just choose pharmacy only, or you prepared for GPAT? To Okay, be you can. yes, Okay. yes. Before that, I want to know, like आप जैसे अभी बी फार्मा में आए, उससे पहले आप मे बी एमबीबीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, राइट? नीट के लिए. सो उसमें आपकी क्या सिचुएशन थी? लाइक व्हाई यू चूज बी फार्म इंस्टेड ऑफ डूइंग एमबीबीएस? To be very honest, I had to drop for MBBS and now for NEET UG. And at the first time of my drop, I had scored around 425 marks out of 720. At that time, the cutoff was around 470. And but in the second year of my MBBS preparation or NEET UG preparation, I have some health issues, like I was in severe migraine, and that's why I am not continuing with the coaching institute, and that's why my family decided that I have to do pharmacy or some other courses. What was the score in the second attempt of NEET? My score was same. Okay. So didn't you feel like if you try even in third attempt, then you may crack it? No, actually, I get somehow I get mentally disturbed at that time, just because I had mean to say कि मैंने 2 साल खराब कर दिए हैं, तो फिर वही था कि अभी एडमिशन लेना चाहिए. देन एज आई टोल्ड यू कि माय कजन इज अ डॉक्टर, एंड he had done his MBBS from PGIMS itself. And at that time मेरे ब्रदर ने मेरे को बताया कि PGI में फार्मेसी के फॉर्म निकलते हैं. देन फिर उसी ने फॉर्म फिल किया था. देन फिर मैं एग्जाम देने गया था फार्मेसी का, जो एंट्रेंस होता था, जिसमें मेरी अच्छी रैंक आई थी. फिर मेरा एडमिशन हुआ था, एंड देन फिर जर्नी स्टार्ट होती है. आपका फैमिली बैकग्राउंड काफी अच्छा सपोर्ट मिला आपको? हाँ, मेरे फैमिली से मेरे को काफी मोटिवेशन मिलता है कि लाइक मेरे कजन्स भी हैं, काफी मतलब अच्छी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो वहां से भी थोड़ा मोटिवेशन आता है कि यस आई हैव टू डू समथिंग लाइक दीज कजन्स. तो जैसे आप बी फार्म में थे, तो हॉस्टल लाइफ भी आपने एंजॉय किया. सो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक प्रिपरेशन में हॉस्टल लाइफ बेटर होती है या फिर डे स्कॉलर लाइफ बेटर? लाइफ अकॉर्डिंग टू मी कि किसी ना हर किसी को हॉस्टल में रहना चाहिए, बिकॉज इन द हॉस्टल लाइफ वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग, लाइक वी हैव टू डू अवर ओन वर्क इटसेल्फ. Like we have to wake up early in the morning, है ना. After that, there was a proper time at my hostel days, that 8 to 9 there was a lunch, no sorry, breakfast. At 1 to 2 there was lunch, and at 8 to 9 there was dinner, है ना. तो मतलब बंदा खुद के पाँव पे खड़ा हो जाता है हॉस्टल में आने के बाद. हाँ, we learned lot of things, like what we have to do. I mean to say कि we have our daily schedule ki like 9 to 5 college, in between we have lunch, and after that evening snacks, and at the night we have dinner. तो somehow वो एक मीन की एक डे को शेड्यूल करके रखता है हॉस्टल डेज. सो ये शेड्यूल है, जैसे बताते हैं सीनियर से बताते हैं, जैसे कॉलेज में बच्चा जाता है फर्स्ट ईयर में, तो उसको बोला जाता है कि फर्स्ट ईयर तो एंजॉय करो, सेकंड ईयर भी एंजॉय करो. सो लगभग कितना एंजॉय करना चाहिए, और किस ईयर तक, किस हाथ तक कितना एंजॉय करना चाहिए? According to me, like first and second year of B Farm, mean to say कि first, second, third sem of B Farm is also the enjoying phase of B Farm. And at that time we learned कि what we have to read in future,
है ना, वी जस्ट मेंटली प्रिपेयर कि वी हैव अराउंड 1.5 year और मीन टू से 2 year, देन वी हैव टू थिंक कि व्हाट वी हैव टू डू इन फ्यूचर. बट इफ at the we can say कि at the fifth semester, if your goal is not decided that but after the BPharm, then it's a problem कि आपका goal decide नहीं है. According to me, for GPAT preparation to be very honest, or whatever the preparation like GATE, CAT जो भी है, आपके पास sufficient 2 year तो होना ही चाहिए, because जो GPAT preparation होते हैं उसमें 18 19 के अराउंड सब्जेक्ट हैं, इंक्लूडिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग सब्जेक्ट. तो उसके लिए वी हैव sufficient time to prepare. तो अकॉर्डिंग टू मी वी फिफ्थ हैव, सेम से स्टार्ट कर देना चाहिए बच्चे को। यस, फिफ्थ सेमेस्टर से स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज मेजर सब्जेक्ट आर इन फिफ्थ सेमेस्टर एज वेल, लाइक फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी एंड जूरिस्प्रूडेंस एज वेल. तो काफी टाइम होता है कि हम ध्यान नहीं दे पाते, जैसे कोई बच्चा ध्यान नहीं दे पाता है, अगर उसका थर्ड ईयर भी निकल गया मान के चलो, तो फोर्थ ईयर में क्या वो क्रैक कर पाएगा, फोर्थ ईयर से स्टार्ट करेगा? यस, क्रैक कर पाएगा. इट्स टोटली डिपेंड ऑन द पीपल दैट हाउ सीरियस ही और शी वाज एट द टाइम ऑफ फोर्थ सेमेस्टर एंड फोर्थ ईयर. तो अकॉर्डिंग टू हाउ मी, लाइक कंसिस्टेंट हार्डवर्क चाहिए जीपैट के लिए. जीपैट इज नॉट अबाउट कि वन नाइट फाइट, मतलब वन नाइट पढ़ा एंड लाइक सेमेस्टर एग्जाम की मॉर्निंग में जीपैट दे दिया. We have sufficient like 6 to 8 months, because a good we need a good content to be prepared for GPAT. Like we are in someone is in fourth year, then उसको फिर प्लान करना चाहिए कि लाइक उसमें 3 to 4 month में उसके पास एक गुड कंटेंट होना चाहिए फॉर प्रिपरेशन के लिए. देन आफ्टर दैट सफिशिएंट टाइम टू रिवाइज, है ना. तो फिर उस टोटली डिपेंड ऑन द स्टूडेंट कि वो मैं अपना टाइम मैनेज कैसे करता है ना. आफ्टर ऑल हमें टाइम, अगर हमारी डेली लाइफ, डेली रूटीन ही मेंटेन नहीं हुआ, टाइम मेंटेन नहीं करना होता, तो इट्स ए प्रॉब्लम. सो like how long students should spend per day for preparation, like 4 hour, 2 hour, 6 hour? Like in the working days, like Monday to Friday, we have to study around 4 to 5 hours a day. And in the weekend, like Saturday and Sunday, and the like Saturday and Sunday, these hours get be doubled. Like we have to study around 5 to 10 hours. Okay, so is it apart from coaching study time, or like it is only self study you are telling about? Like mean to say कि like 4 to 5 hours you have to be active mentally. Like you Okay. have to make notes, you have to revise. But the 4 to 5 hours like are to be consistent. Not like कि एक दिन आपने 10-12 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन फिर आप 1 घंटे पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे. वो नहीं चाहिए. डेली कंसिस्टेंट हार्ड वर्क चाहिए कि 4 to 5 hours, 6 hours a day is sufficient for GPAT preparation. राइट. तो जो लोग तो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो करना चाहते हैं, लेकिन कोचिंग का कोई मटेरियल नहीं है उनके पास, ना ही कोचिंग ज्वाइन की है, तो व्हाट विल यू रिकमेंड कि उन्हें कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए? और जो लोग अभी सेल्फ प्रिपेयर करना चाहते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास तो कोचिंग है या तो मनी नहीं है, या फिर मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता, तो वे क्या स्ट्रेटेजी रहे कि वो क्रैक कर पाए जीपीएट और नहीं करें? For those who have some financial issue, then he or she have to go on the YouTube. There were so many content at the time of my GPAT preparation, and I think अभी भी है वो, तो वो भी prepare करने चाहिए. Side by side we have to build our I mean to say कि we have to build our basics. Like in BPharm, we have to know कि like how tablet punching occur, and what is the principle of impact meal, and classification of cholinergic, anticholinergic chemotherapy. We have to learn a lot of things. GPAT is whole about the BPharm syllabus. हमारा जितना बेसिक क्लियर होगा, जितना अच्छा होगा, उससे उतना अच्छा ही हम उसको GPAT में आउटपुट दे पाएंगे. Okay, Or right. for those So who want to prepare, so I want to say कि for GPAT preparation, I want to say 5 things. That for GPAT preparation, you have a good content first. You have you want to do revision daily. You have a good mentor, है ना. और जो मीन टू से कि गुड कंटेंट होना चाहिए, एक अच्छा मेंटर होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, उसके बाद में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी डेली हार्ड वर्क होना चाहिए, yeah, है ना. और भी सिंसियर होना चाहिए, ऑनेस्टी से हार्ड वर्क होना चाहिए. ये नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं साइड बाय साइड, हमारा मोबाइल साइड में खुला हुआ है,
वो नहीं, ऑनेस्टी वाला हार्ड वर्क चाहिए। एंड दीज 5 थिंग्स आई थिंक वेरी नेसेसरी फॉर जीपीएट प्रिपरेशन। क्या होता है कि बच्चे बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो उनका क्या उनको क्या टिप्स दे दी जाए कि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन मेंटेन कर पाए बच्चे? Consistency, like we, according to me, we have to follow 50-10 rule. Like at the time of my UG preparation, and at that time I usually use my mobile phone. At that time I have a keypad like mobile, एंड उसमें मैं फिर अलार्म सेट करता था कि लाइक 1 आवर बाद ही मेरे को उठना है। तो जैसे 1 आवर बाद उठना, फिर 10 मिनट का गैप, फिर 1 आवर बैठना, 10 मिनट का गैप। तो इससे हम अपने माइंड को ट्रेंड करते हैं, बिकॉज हमारा माइंड जो है ना वो एक पर्टिकुलर एज के बाद ट्रेंड होता है। लाइक जब हम बी फार्म में नहीं आए थे तो हमें वी डोंट नो कि हाउ टू मेक दी सस्पेंशन इमल्शन क्रीम्स वगैरह, बट उस टाइम पे आया। फिर हमें इवन ये भी नहीं पता था कि पैरासीटामोल क्या है, पैरासीटामोल बुखार की दवाई, बस इतना पता था हमें। तो उसके बाद पता लगा कि हाँ एनसेड्स है, वो एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन नहीं होता उसका, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक ही होता है। तो वो टाइम टू टाइम अपना जो माइंड का डेवलपमेंट होता है। और कंसिस्टेंसी के लिए लाइक आप ये नहीं कि एक दिन, मतलब ग्रेजुअल चीजें होती है, सडन चीजें बिल्कुल नहीं होती मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो धीरे धीरे अडेप्ट होता है। वी आर नॉट लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हाँ डाटा डाला एंड रिजल्ट आ गया हमारे पास। ओके। सो अभी जैसे आपने बताया थे कि आप टीचर भी हो, तो वो आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई कि आपको टीचिंग का जैसे स्टार्ट हुआ, आपने पढ़ाना स्टार्ट किया बच्चों को, तो अभी आप जीपेट अड्डा में ज्वाइन भी कर रखा आपने, आप वहीं से स्टूडेंट्स को मेंटर करते हो, वो आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, थोड़ा उसके बारे में बताएं। When I was in my B Farm, then I usually like to guide my junior as well, and they all were very happy by my guidance, and they all are saying कि sir you are a good teacher, है ना, and some are saying कि you are also a elder brother for us, and somehow कि I usually like to guide my batchmate as well कि वट वाज आवर स्ट्रेटेजी एट दैट टाइम, है ना। तो उस टाइम पे लाइक सम अप्रिशिएशन आते थे कि यस ऐसे। फिर सम हाउ अदर कॉलेज में भी ऐसे, मतलब थोड़ा सोशल मीडिया से पता लगा उनको कि ऐसे ऐसे अंकित है ऐसे, बिकॉज एट द टाइम ऑफ माई जीपैट लाइक 2022 में आई वॉज द नॉर्थ जोन टॉपर, है ना। तो फिर समहाउ मेरे को काफी मतलब लगा कि हाँ यार मेरे में कुछ ऐसा कैलिबर है दैट आई हैव टू बिल्ड अप। तो सेम टाइम की मैंने जीपीटेड फार्मा अकेडमी से कोचिंग ली थी, फिर मैंने इसी में एज ए गेस्ट फैकल्टी स्टार्ट किया था, मतलब मिंटू से डेमो। तो फिर मतलब फिर मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना, तो फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के स्टूडेंट आते थे, सम आर फ्रॉम महाराष्ट्र, असम, बिहार, तेलंगाना इवन, एंड पंजाब, हिमाचल प्रदेश के। तो समहाउ ऑनलाइन लेक्चर्स में डेमो लेक्चर देता था मैं वहां पे, तो डेमो और गेस्ट फैकल्टी के लेक्चर देता था। तो वहां पे उनके रिव्यूज अच्छे आए कि यार पढ़ाने के अलावा वो बोलते हैं मेरे को कि पढ़ाना तो पढ़ाने को सब पढ़ा देगा, बट एक ऑनेस्टली पढ़ाना, और वी कैन से कि हमारी टाइम मैनेज कैसे करना होता है। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम परस्यूइंग मास्टर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, पंजाब यूनिवर्सिटी, है ना। सेम साइड बाय साइड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल, फार्मेसी रिलेटेड, एंड आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द प्लेसमेंट एज वेल। एंड एज यू टोल्ड मी की दैट मैं मेंटर भी करता हूँ स्टूडेंट को, और कोचिंग भी संभाल रहा हूँ। तो वो मैंने यहीं से जीपीटेटा फार्मा अकेडमी से सीखा है, और इसी को थोड़ा अपने अंदर बिल्डअप किया है कि हाउ वी मैनेज अवर लाइफ, हाउ वी शेड्यूल अवर लाइफ। one more thing that I want to convey to all the viewer, कि आप अपने डेली मीन टू से कि जैसे कि टुमारो इज लाइक वेडनेसडे थर्सडे, तो आपको आज ही जैसे सोने से पहले आपको, मतलब मेंटली आपको पता होता है कि यार आपका 9 to 5 कॉलेज है, इन बिटवीन आपकी 9 to 1 आपकी लैब है, देन आपके लेक्चर्स हैं। तो प्री डिफाइंड होता है कि लाइक फार्माकोलॉजी की लैब है, वी डू नॉट हैव टू एक्सपेरिमेंट ऑन द एनिमल, बिकॉज मेनका गांधी ने बैचलर लेवल पे एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दिया है। तो आई थिंक देयर इज सफिशिएंट टाइम इन द फार्माकोलॉजी लैब दैट वी हैव टू यूटिलाइज टू डू अवर स्टडीज, है ना। एट द सेम टाइम की लाइक हम जो लेक्चर्स होते हैं वो यूजुअली लाइक
1 आवर के एक लेक्चर होता है, तो यूजुअली 40 मिनट 45 मिनट में हो जाता है। तो वहां पे भी हम 10 to 15 मिनट लगा सकते हैं। तो मीन टू से कि हमें पता होता है कि नेक्स्ट वीक क्या क्या होता है, तो उस हिसाब से हम अपना डे शेड्यूल करें कि लाइक मेरे को आज फार्माकोलॉजी में CNS करना है, ANS करना है, टेबलेट पढ़ना है, इंजीनियरिंग पढ़ना है, कोकोनोस में अल्कोहल पढ़ना है। हम अपने हिसाब से डेली शेड्यूल करें। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्टीज होगी कि हमारा शेड्यूल नहीं बन पाएगा, बट जैसे जैसे टाइम जाएगा, जैसे हमारा माइंड हमारी सुनने लगेगा, बिकॉज वी हैव टू कंट्रोल अवर माइंड। हमारे माइंड को हमने अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि डेली शेड्यूल बनाए, 1 2 दिन 5 दिन हफ्ते भर वो नहीं होगा। उसके बाद डेली शेड्यूल बनाए, देन फिर डेली शेड्यूल एक वीकली शेड्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। लाइक मेरे को वीकली पता है कि मेरा आज दिन ये लेक्चर है, तो मैं उस हिसाब से शेड्यूल करूंगा उसको। फिर वीकली शेड्यूल समहाउ मंथली भी हो जाते हैं। लाइक जब सिलेबस हमारे हाथ में आने लगता है, तो यस इस मंथ में मेरे को पूरा जीपीटी सिलेबस रिवाइज करना है। टू वेरी ऑनेस्ट दैट एट द टाइम ऑफ माय प्रिपरेशन वन आई रिमेम्बर कि एक बार मैंने CNS 2 दिन में कंप्लीट किया था, फार्माकोलॉजी का CNS। एंड फिर उसके बाद मैंने इतने रिवीजन करे, उसकी इतने रिवीजन किए, तो जब मैं पढ़ता था उसको, तो मैं हमेशा टाइम नोट करता था कि यार आज कितने आवर लगे, कितने आवर लगे। एट द इनिशियल टाइम आई टेक अराउंड 12 आवर फॉर दी CNS कंप्लीशन, एंड आज मेरे को उसको 1.5 आवर लगता है CNS को रिवाइज करने। Like इट्स it's जस्ट all about practice प्रैक्टिस एंड makes रिवीजन, हाँ, कंसिस्टेंट yeah. रिवीजन एंड Okay. रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जब आप फर्स्ट टाइम रिवीजन करते हो, इट टेक्स अराउंड, लाइक आप टेबलेट रिवीजन करते हो, इट टेक्स अराउंड 3 to 4 आवर। बट आप रिवीजन एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे, रेगुलर इंटरवल पे करोगे, देन फिर एट द एंड में वो जो रिवीजन है वो काफी कम हो जाएगा, है ना। मैंने सभी मेरी नोटबुक्स पे लिखा हुआ है कि मेरे को कितने किस डे पे, लाइक कभी होता था कि यार तू स्लो तो नहीं चल रहा था, देन फिर मैं राइट कर लेता था अपनी नोटबुक पे आगे वाले पेज पे कि यार मैंने इस दिन ये किया। इवन अभी पीछे करंट में भी मैंने रिवीजन करता रहता हूँ मैं सिलेबस के, बिकॉज उसमें टच में हूँ, बिकॉज स्टूडेंट लाइक मैं सुटिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री टीच करता हूँ, तो समहाउ वहां पे कोरिलेट करके पढ़ाना होता है। लाइक हम टेबलेट बना रहे हैं, तो मैं उनको इवन एग्जांपल देता हूँ टेबलेट का कि मैं डोलोक्सिटिन की टेबलेट बना रहा हूँ, तो मैं उनको बताऊंगा कि ये SSNRI है, इसका ये साइड इफेक्ट है, ये यूज है, ये ऐसे यूज करते हैं। तो मैं उनको समहाउ उसको टेबलेट से भी वो करूंगा, मतलब मीन टू से कि सुटिक्स से भी कोरिलेट करूंगा, समहाउ उसको केमिस्ट्री से भी उसकी स्ट्रक्चर बना के कोरिलेट करूंगा, है ना। ऐसे कर सकता हूँ। लाइक मेरे को कोग्नोसी पॉइंट ऑफ व्यू से बताना हो, तो मैंने बताया कि स्ट्रेस डिप्रेशन के लिए होती है, फिर मैं उसमें बताऊंगा कि नक्सोमिका को यूज करते हैं, पिलोकार्पिन का भी समहाउ यूज देखा गया है, और ब्राह्मणी का भी देखा हुआ है, टी वगैरह का तो CNS स्टूडेंट होते हैं, तो मैं वहां से भी कोरिलेट कर सकता हूँ। मीन्स टू से कि हमारा जो होल जीपीटी सिलेबस है वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ओके, सो ये तो हो गया, जैसे कोई बच्चा अगर प्रिपरेशन करना चाहे, लेकिन कई बार क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन आ जाती है बच्चे के पीछे। ठीक है, कोई प्रिपरेशन कर रहा है, या तो मोबाइल से, या फ्रेंड सर्कल से, या फैमिली से। सो उनको हैंडल कैसे करेगा स्टूडेंट? लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, फॉर द मोबाइल वी हैव, लाइक मोबाइल के लिए लाइक पहले तो ऑनलाइन लेक्चर्स होते थे, ऑनलाइन कोविड के टाइम पे, तो ऑनलाइन उस टाइम पे 9 to 5 तो हाँ लिंक आ रहा है नहीं आ रहा है ये सब करना होता था। अब तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को क्या, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा सबको कि इट्स टाइम टू स्विच ऑफ योर ऑल दी नोटिफिकेशन। सिर्फ एक व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ऑन रख या सकते हो, इट अप टू यू। देन यू हैव टू स्विच ऑफ ऑल दी नोटिफिकेशन, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डिसाइड कि आपको 2 घंटे पढ़ने के बाद ही फिर वो मीन टू से कि मोबाइल चलाना है। सेम इज फॉर लाइक फ्रेंड सर्कल में, लाइक वी आर सिटिंग इन ए कैंटीन, देन वी हैव टू स्टैंड अवर सेल्फ, वी हैव टू speak ourselves that I have to do some work. Like we spent around 1 to 2 hours in gossips, but we have to stand ourselves like 5 to 10 minutes. It's okay, but we have to say कि यार मेरे को पढ़ना है ना। तो वी हैव टू स्टैंड अवर सेल्फ। सेम इज फॉर फैमिली में, लाइक अगर कुछ इमरजेंसी है, बिकॉज आफ्टर दैट हम फैमिली के लिए पढ़ रहे हैं, अगर फैमिली इश्यू है तो देन हमें पहले उसी को देखना चाहिए। बट उसका भी कुछ मतलब मीन टू से कि उसका कुछ एडजेसेंट मीन टू से कि कुछ उसको रिप्लेसमेंट अल्टरनेटिव करेंगे, भी। लाइक उसकी जगह कोई और जा सके, मेरा कलीग्स, मेरा या जो ब्रदर है, सिस्टर, वो कर सके। समाओ अगर हमारे ऊपर ही है, देन हम उसका सब्स्टिट्यूट नहीं निकाल सकते। या उसका तो नहीं मिटा सकते। राइट। सो अभी आप जैसे एम फार्म, कौन सा आपने एम फार्म मेरा स्पेशलाइजेशन? 3rd सेमेस्टर चल रहा है फार्मास्यूटिक्स में, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। ओके, फार्मास्यूटिक्स में चल रहा है आपका। सो प्लेसमेंट आपके हुए हैं, या अभी रिप्लेसमेंट होती है या हाँ, नहीं होती है? प्लेसमेंट आर गोइंग ऑन समहाउ। आई हैड अपीयर इन वन इंटर्नशिप फॉर डॉक्टर रेड्डी, and due to some family issue as well,
I'm not able to join the Dr. Reddy internship. I had qualified the assessment exam as well as technical round. In the HR round, in QA session, and QA session, I raised a question that I have some family work, some rituals. Mean to say, कि, on 27th or 28th of August, and I'm not able to join from 21st of August, and my interview was on 18th of August. है ना? On a short term basis, I am not mentally as well as socially, mean to say कि active, Yeah. socially prepare for the joining. बट Okay. फिर मैंने डिनाई कर दिया. Somehow डॉक्टर रेड्डी, नोवार्टिस, सिप्ला, मीन टू ल्यूपिन or internship are going on. Around 16 to 17 students are on internship आज तक. Or somehow one placement company was also come in the last month. That is Aurea Biolab. And the package offered by Aurea Biolab is 5 lakh in the extraction or analysis portion. And but my area of interest is like R&D. So I want to do my job in R&D department. So That's why like मैंने for Aurea Biolab में ली. राइट, सो प्लेसमेंट के लिए या जैसे कोई अभी कंपनीज आ रही है, सो उसमें उनकी क्या डिमांड होती है कि बंदे के पास क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? कोई Like पास्ट हाँ, ग्रेडिंग भी देखी जाती है या फिर लाइक ओनली फॉर मास्टर्स? like I mean to say कि like our आपका GPAT exam, like some had score here 01, some 10, some 38 like me, है ना? And some are scoring 5 rank in NIPER, 10 rank in NIPER. Your GPAT and NIPER rank are the gate of your college, है ना? It doesn't mean कि who had score in AIR 01 and get the 25 lakh package. Your soft skills like how you to behave with your seniors, with the interviewers, your attitude, है ना? Your situation handling questions, your way of speaking, like communication skill, it matter. Somehow आपकी like for R&D आपके मीन टू से कि आपकी जो जी पार्ट सिलेबस है, मीन टू से आपका जो जो फार्मेसी बैकग्राउंड उसकी भी नॉलेज होना चाहिए. Somehow like consultancy type of job, you have some soft skills like you have experience in the MS Excel, PowerPoint, somehow Python, SQL language as well. And for regulatory, you have knowledge about the clinical trials, NDA, IND, how they get filed. And for the pharmacovigilance field, you have a knowledge about the adverse drug monitoring, adverse drug reactions, side effects of drug, somehow classifications of pharmacology as well. So So these like are lot of criteria, certification and are. before that, Uh-huh. our CV gets selected based on our 10th, 12th, and BPharm marks. So for like you mentioned many kind of areas to study before placement. So there are a lot of certification. Like students should go for certification during B Farm. Yes, student can take the certificate of BPharm, like they can take the certificate from Udemy, Coursera, but they haven't knowledge about it and that, because when they write that I am a certified student of MS Mhm. Excel from Udemy, then the interviewer asks question about the MS Excel, or she Okay. ask no, he or she ask about like how many marks you want to give you out of 10 in MS Excel. So you have to be mentally prepared for the questions that interviewer will ask you. Like एक्चुअल में पढ़ना पड़ेगा या ये नहीं सर्टिफिकेशन Yes, लेके ही we have चल जाएगा? a knowledge about that course that राइट, we are दैट्स इट. written on our CV. सो अभी जैसे अभी आप टीचर थे, ओके, सो उसका बेनिफिट मिलता है प्लेसमेंट के रिगार्डिंग? कोई प्लेसमेंट में जैसे आप टीचर बताते हो अपनी कंपनी को, या आपने कोई Yes, to be रिसर्च very किया, सपोज honest, आपने रिसर्च प्रोजेक्ट किया है? हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक मैंने जैसे बताया कि मेरे को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, उनका सिचुएशन हैंडल करने का. सम हाउ लाइक सम ऑनलाइन क्लासेस में लाइक सम टाइम कोई अनम्यूट हो जाता है, तो उस टाइम पे सिचुएशन हैंडल कैसे कर सकते हैं हम, है ना? तो कई सम हाउ की लाइक वी आर डूइंग टीम वर्क, लाइक देयर 4 to 5 फैकल्टी मेंबर वी आर. तो
somehow we learn ki how to do teamwork as well, how to behave, and somehow like I'm a teacher of chemistry as well as physics, so somehow this portion can also help me for the R&D as well. I have a knowledge of around whole the subject of GPAT, not too much ओके। and not too low, but काम चल जाता है मेरा इसमें इंटरव्यू में. अच्छा, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर डिमोटिवेट हो जाते हैं, मोटिवेशन नहीं है पढ़ने का, या मन नहीं करता पढ़ने का, या मेरा मन नहीं लगता। वो तो ठीक है, चलो बच्चे का मन लग रहा है, वो टाइम निकाल रहा है, डिस्ट्रैक्शन को, मोबाइल को बंद कर दिया, फैमिली को भी चलो ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ, ठीक है। लेकिन बच्चे बोलते हैं मेरा मन नहीं कर रहा सर पढ़ने का, मैं क्या करूँ? तो उसके लिए क्या किया जाए? पहली बात तो हमें ये फाइंड करना है कि हमारा मन क्यों नहीं कर रहा, ऐसा क्या था जिससे हम फार्मा फील्ड में आए. देन फार्मा फील्ड में आने के बाद इन दी थर्ड एंड फोर्थ ईयर ऑफ बी फार्म ऐसी क्या चीज थी कि जिसने हमें प्रोवोक किया कि वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द जीपैट. While preparing for the GPAT preparation, if anyone get demotivated, then he or she have to call, or we can say message to their mentor. Then, sir, I get demotivated, and he or she have to share problems with their mentors, and then mentor भी कुछ decide करेगा. And if usually like I will get motivated, then I will call my senior. Uh, as well as my teachers of coaching, as well as my mother के साथ भी शेयर करता था कि मैं ऐसे ऐसे, तो somehow हर टाइप से मोटिवेट आता है. अदरवाइज सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन. वी हैव सेल्फ टू क्लियर मोटिवेशन। अवर वाई कि वाई हम फार्मा में क्यों आए, हमें जीपेट ही क्यों करना है, हमें या वही फार्मा के सेल्फ बाद. मोटिवेशन। यस, हाँ, हमारा वाई इज अवर मोटिवेशन. Okay. So like students can approach their alumni as well, like you and me, like this, right? यस, यस. Yeah. Okay. So अभी हम नाइपर पे आते हैं, लाइक नाइपर क्या, आप नाइपर के बारे में बताइए। आप जैसे आपने जीपेट दिया, उसके बाद नाइपर दिया, फिर आपने नाइपर, आई थिंक आपका एडमिशन पीयू में जीपेट के बेसिस पे हुआ है, राइट? यस, सो यस, यस. नाइपर का क्या हुआ, नाइपर कहाँ गया आपका, या Yes, yes. I कैसे रहा? had qualified the NIPER of 2021 as well as NIPER 2022. In the NIPER 2022, I had scored 206 rank, and I get provisional admission in NIPER Mohali in medicinal chemistry. But from the my GPAT preparation, or we can say from the my journey of BPharm, I had a clear mindset that I have to pursue my masters. I want to do my masters in pharmaceutics because I like to study pharmaceutics, because in the pharmaceutics portion we deal every portion of the pharmacy, like we manufacture a drug like paracetamol. We learn about the classification of paracetamol, its side effect, its use, somehow its उसकी lipophilicity as well, and उसकी structure भी as well. तो जो pharmaceutics जो branch है, that is very diverse branch, and वी नो मतलब हर ब्रांच के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पता होता है. तो इसलिए मैंने थोड़ा फार्मास्यूटिक्स में करना था, इसलिए मैंने नाइपर मोहाली में एडमिशन विड्रॉ किया. देन आई टेक माय एडमिशन इन पंजाब यूनिवर्सिटी इन द फार्मास्यूटिक्स. So we do respect all categories. Like about PU, I want to ask about PU. So ये होता है जनरल एसटी ओबीसी, ये कोटा होता होगा वहाँ पे, है ना? वैसे ही नाइपर में होता होगा। सो In PU, there is a quota for the PU student, like 85% seats are reserved for the PU student, and around 15% seats are for non-PU. To be very honest, in my pharmaceutics, there are 10 seats. Out of 10, 8 are reserved for the PU student, and 2 are for other than PU. And these 2 seats are in general category. There is no SC/ST in the regular courses. no STS. Okay. And And OBC as well. about Naipar? नाइपर में देर वाज ए मतलब प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट इन दी SC, OBC, EWS, ST, जनरल. यानी SC/ST OBC की पार्टी हो रहा है वहाँ पे। हाँ. तो बच्चे बोलते हैं कि कॉलेज में सर रिग्रेस शेड्यूल है, ठीक है, काफी ज्यादा रिग्रेस होता है, सुबह जाना शाम को आना, और कुछ बच्चे डे स्कॉलर है तो उनका टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है। सो वे बोलते हैं कि सर टाइम नहीं मिलता जी प्रिपरेशन का, तो वो कैसे मैनेज करें? लाइक दोज हु आर डे स्कॉलर, देन वो हमारे अपने ट्रेवलिंग आवर में, लाइक किसी को बहादुरगढ़ से आना है, किसी को
दादरी से आना है, किसी को सुहाना से मतलब गुहाना से आना है, तो 1 से 2 आवर वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक अगर उनको शर्म आती है कि भाई हम हमारी नोटबुक खोल के पढ़ेंगे तो सब बोलेंगे, हमें पहले अपने लिए सोचना है कि हमें तो बुरा नहीं लग रहा ना हम पढ़ने के लिए, राइट। हमारे फ्यूचर के लिए पढ़ना है। तो अगर इनको फिर भी बुरा लगे तो वो अपने फोन में पीडीएफ खोल ले, यूट्यूब पे आज कितनी अच्छी अच्छी वीडियो चल रही है, उस टाइम पे मैनेज करें। सेम वो कॉलेज से जाते टाइम मैनेज करें। अगर कॉलेज में थोड़ा हेक्टिक, मतलब थोड़ा लेक्चर नहीं लग रहे हैं ड्यू टू सम रीजन, ऐसा होता नहीं है बट होता है तो ऐसा, तो उस आवर में लाइक अपने लिए स्टैंड करें, अदर देन कि बच्चों हमारे अपने कलीग्स के साथ गोशिप करने से या फिर कैंटीन में कुछ विटा बूथ पे बैठ के खाने से, वो अपने लिए स्टैंड लें कि हम लाइब्रेरी जाएं, लाइब्रेरी पढ़ें। पीडीजे की लाइब्रेरी इज दी वन एंड बेस्ट लाइब्रेरी इन दी वर्ल्ड, है ना। तो अगर पीयूबी पीजीआई की लाइब्रेरी नहीं है जाइए। तो वैसे भी मिल जाती है, सौ वैसे दो भी सौ रुपए दे लाइक के। हमारे उसमें पीजीआई में 5 से 6 लेक्चर हॉल है, उसमें मिल जाती है जगह बैठने की, पढ़ने की। और समहाउ कि हम लैब्स में जाकर भी लैब अटेंडेंट से रिक्वेस्ट करके वहां बैठ के पढ़ सकते हैं। तो हमें अपने लिए स्टैंड लेना होगा, हमें अपने लिए टाइम निकालना होगा। टाइम सबके पास 24 आवर ही होते हैं, किसी के पास एक्स्ट्रा नहीं होता, तो वी हैव टू मैनेज अवर टाइम, है ना। उन्हीं 24 आवर्स में से हमें निकालना है। सो फाइनली अप्रोचिंग टू द एंड, आप अपने अपने जूनियर्स को क्या बताना चाहोगे, या आप हमारे व्यूअर्स को एट द एंड में क्या बताना चाहोगे जो अभी जीपेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि वे भी एक अच्छे से रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन लें और अच्छे प्लेसमेंट पैकेज को ग्रैब कर पाए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको बोलना चाहूंगा कि आपने डिसीजन लिया है जीपेट प्रिपरेशन का, तो दैट्स गुड, बिकॉज हमारा फार्मा फील्ड काफी डेवलपिंग फील्ड है इंडिया का, है ना। तो इसलिए हमें जो भी हमारे पहले तो हमें अपने कोर्स के लिए, लाइक फार्मेसी के लिए, हमें ऑनेस्टी प्रूव करनी है। लाइक सम हाउ हम मेडिकल यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं, तो वहां पे फार्मा फील्ड को, नर्सिंग फील्ड को थोड़ा लो माना जाता है। तो वी हैव टू रेस्पेक्ट अवर फील्ड। अगर हम ही हमारे हमारे प्रोफेशन की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर कोई नहीं करेगा। लाइक इन दी COVID-19 pandemic, we are the pharmacist, or we can say our colleagues, our seniors, that had made the vaccine, that is Covaxin, that was made by Bharat Biotech, है ना। उस टाइम पे अगर हमारे मेंटर्स, हमारे सीनियर्स ही नहीं होते, तो डॉक्टर्स क्या करते, डॉक्टर जो दवाई देख के कॉम्प्लिकेशंस तो कम नहीं हो रहे थे, समहाउ वैक्सीन आने के बाद कॉम्प्लिकेशन काफी हद तक कम हुए हैं। तो वी आर द फार्मासिस्ट दैट मेक द मेडिसिन, एंड दैट मेडिसिन आर प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, है ना। तो वी हैव टू रिस्पेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे प्रोफेशन की। पहले तो अपने आप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें, अपने आप की रिस्पेक्ट, लाइक हम अपने आप को, मतलब हमें अपने आप को ही अगर ऑनेस्ट नहीं बोलेंगे, ओबीडियंट नहीं बोलेंगे, तो कोई नहीं बोलेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट इज द बेस्ट रिस्पेक्ट। उसके बाद हमें अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और फिर जिस भी फील्ड में हमें काम करना है उसके लिए हमें डेडिकेटेड रहना चाहिए। हमें फ्यूचर गोल, मीन टू से कि हमें पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, प्रेजेंट में जो चल रहा है वो, और फ्यूचर का सिर्फ प्लान करना चाहिए। वी डू नॉट हैव टू स्टिक ऑन द फ्यूचर की, लाइक जीपेट नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होने के बारे में नहीं सोचना, बट ये सोचना कि हो जाएगा। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी इज द फर्स्ट एंड लास्ट की टू गेट या द गुड रैंक। कंसिस्टेंसी यस, इज नेसेसरी। कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अपने काम को एक प्रॉपर शेड्यूल में, डेली शेड्यूल बनाना चाहिए, उस शेड्यूल को पूरा करना चाहिए। और जीपेट इज नोट इतना हार्ड एंड टफ नहीं है, बस पढ़ते हैं तो हो जाता है। क्लियर क्लियर करना बहुत आसान है, बट आसान उन्हीं के लिए है जो कंसिस्टेंट रहेंगे। स्मार्ट वर्क आर नेसेसरी फॉर द जीपेट प्रिपरेशन। हार्ड वर्क, लाइक कि सम आर रीडिंग केटी त्रिपाठी थ्रू आउट देयर प्रिपरेशन, एंड दे आर लेफ्ट विद द क्लासिफिकेशन पार्ट। तो आई डोंट थिंक कि कोई वो स्मार्ट स्टडी है। स्मार्ट स्टडी मीन्स कि वी हैव टू डू एमसीक्यू प्रैक्टिस एज वेल, we have to make short notes for the last time preparation, and at the end I say all the best for GPAT and IPAT preparation exam के लिए, all the best। थैंक यू वेरी मच अंकित, ज्वाइन करने के लिए और हमारे अपने जूनियर्स को मोटिवेट करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए। सो राइट बॉयज एंड गर्ल्स, दैट्स ऑल फॉर दिस इंटरव्यू सेशन। आई होप यू विल लाइक इट। थैंक यू। Thank you Rakesh, thank you everyone।